सुनो اے ٹوٹے ہوئے، اے بکھرے ہوئے دل، اے معجزوں کی منتظر آنکھیں، اس بار جب تم تہجد پڑھنا تو تہجد کے وقت استغفر اللہ کی تسبیح کرنا۔ یہ تسبیح جنتیں اور چشمے لکھوا لیتی ہے آپ کے واسطے، اور آپ کو اس تسبیح سے اپنی قسمت کے بدل جانے کا احساس بھی ہونے لگے گا۔ یہ بہت ہلکی پھلکی پیاری سی تسبیح ہے، دلوں میں سکون اتار دینے والی تسبیح ہے، دلوں میں امید پیدا کر دینے والی تسبیح ہے۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وقت تہجد آسمان دنیا پر نزول فرما کر کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر مانگے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگے اور استغفر اللہ کی تسبیح بھی ضرور پڑھیں۔ پھر دیکھیں کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کس طرح سے قبول ہوتی ہیں۔ جب وقت تہجد یہ تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنا تو یقین سے، دھیان سے، محبت سے پڑھنا، کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھنا، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو اتنی بار پڑھنا، امید کے ساتھ پڑھنا کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں گے، مجھ پر رحمتیں نازل ہوں گی، میرے لیے معجزے ضرور ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو پھر اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کے لیے معجزے اتارتا ہے۔ اور پھر مانگنا بھی یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور محبت سے اور امید سے۔ پتہ ہے وہ پاک پروردگار ہر روز تمہارے قریب کر رہا ہے تمہارے معجزوں کو جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ استغفار کو تھام سکتے ہو، اس میں محنت کر سکتے ہو، اس میں تسلسل پیدا کر سکتے ہو، کیا اس کی کثرت کر سکتے ہو؟ اگر یہ سب کر سکتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ معجزے کرنے میں دیر نہیں کرے گا، اور نہ ہی دعاؤں کی قبولیت میں دیر کرے گا۔ انشاءاللہ جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا اور ضرور ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ تم نے صبر بھی کرنا ہے، صبر بھی ایسا کہ جس میں شکایت کا نام بھی نہ ہو، جو تمہارے دکھ درد کو جانتا ہے، جو تمہارے دل کا مالک ہے، یقین بھی اسی پر کرو، اتنا پختہ یقین کہ بس فوراً معجزے ہو جائیں۔ بس ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو پاک پروردگار کو پسند نہیں، اور ان چیزوں کے قریب ہو جاؤ جو اس کی رضا کا ذریعہ ہے، کیونکہ گناہ اور ثواب ایک دفعہ سمجھ آ جائے تو ساری واپسیاں ممکن ہو جاتی ہیں۔ معجزے صرف تہجد پڑھنے سے نہیں ہوتے، بلکہ یقین کے ساتھ پڑھنے سے ہوتے ہیں، صبر کرنے سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی، گناہوں کی معافی مل جانے کے بعد ہوتے ہیں۔ اس بار
आप अपना एक गोल सेट कर लीजिए आज ही से कि आपने कितनी बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़िए, उठते बैठते पढ़िए, वक्त तहज्जुद पढ़िए, क्योंकि ये ख़ास वक्त है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मुझसे मग़फ़िरत तलब करो कि मैं तुम्हें बख्श दूँ। इस तस्बीह से बड़ी बड़ी मुरादें पूरी होने लगती हैं। मैंने तो दिनों में बल्कि चंद घंटों में मौजज़े होते देखे हैं इस अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह से। कुरान पाक हर एक के लिए मौजूद है, लेकिन हर एक की निगाह इस मुक़द्दस किताब पे नहीं पड़ती। हर किसी को इसको पढ़ने की तौफ़ीक नहीं मिलती। इसी तरह तहज्जुद की तौफ़ीक भी हर किसी को नहीं मिलती। बड़े ही ख़ास लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ये तौफ़ीक अता करता है। हर किसी को मौजज़ों की, मिसालों की खबर नहीं जो आपको है और होने जा रही है। आखिर कुछ तो है ना कि आप तक अल्लाह पाक, कायनात का बादशाह, ये पैगाम पहुंचा रहा है। आप इन अल्फाजों पर आकर रुक रहे हैं। आपके सामने बार बार ऐसे ही चीज़ें ला रहा है, ऐसे ही वीडियोज़ ला रहा है। और इस बार जब तहज्जुद पढ़ना ना, तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह ही ना पढ़ना, बल्कि इस बार तहज्जुद पढ़ना तो अपने सजदों को लंबा करना, अपने झुकने को तवील करना। बाज़ औक़ात आपकी खामोशी से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जिन मौजज़ात की राहें आप देख रहे हैं वो खुद तुम्हारी राहों से आ मिलेंगे। जिन सिलों की चाहत आप कर रहे हैं वो खुद आप तक आएंगे। बस यकीन कामिल रखना है। सारे शोर में जहाँ कोई चेहरा आपको पुरसुकून दिखाई देता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा यकीन उससे और वो यकीन से जुड़ा हुआ है। वो मेहनत में भागता है, वो मेहनत के नतीजों से नहीं भागता होता। वो अपने देने में भागता है, लेने में नहीं। और जब वो रब से मांगता है तो फिर सब्र भी करता है और इंतज़ार भी। पता है, जब आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं और फिर इससे गुनाहों के असरात धुल कर गायब होते हैं, तो इंसान वापस अपनी कुदरती ताकत में आता है। उसके पास खैर दौड़ती है, उसके पास कबूलियत तेज़ी से आती है और फिर उसके पास मौजज़े भी आते हैं। इस्तिग़फ़ार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्ब नसीब होता है, गुनाह धुल जाते हैं, दिल से पर्दा हट जाता है, दिल का ज़ंग साफ हो जाता है, बारिशें और खुशहाली नसीब होती है। ये सब कुरान पाक में मौजूद है। इस्तिग़फ़ार से माल में इजाफ़ा होता है
औलादे नरीना अता की जाती है, फसलें लहलहाती हैं, दरिया रमा हो जाते हैं और कुव्वत में इजाफा किया जाता है। ये नमाज़ों की, दुआओं की, तहज्जुद की तौफीक, इस्तिग़फ़ार की तौफीक कोई मामूली बात नहीं है। ये बड़ा ही ख़ास करम है आप पर आपके रब का। जानते हो, इस्तिग़फ़ार की तौफीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। बस अल्लाह ताला से कहो, या अल्लाह हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। जब आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी छोड़ते हैं, किसी भी चीज़ को अपनाते हैं, तो उसका सिला आप तक ज़रूर आता है। आप आज़मा कर देख लें। इस्तिग़फ़ार तो वो ज़िक्र है कि जिससे तुम्हारे अंदर जान पड़ती है। वो जो तुम्हारे ऊपर गुनाहों की धूल को झाड़ दे, वो जो तुम्हारे नफ्स को, रूह को, वजूद को खूबसूरत बना दे। इस्तिग़फ़ार वो चीज़ है, वो तस्बीह है। तुम्हें वो इज़्ज़त और मकाम मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम इस्तिग़फ़ार को साथ जोड़ लो अपने। तुम्हारा असल बहुत करीब है तुम्हारे, तुम्हें इसको पाना है। यानी ये तस्बीह जो इस्तिग़फ़ार की है ज़रूर पढ़नी है, और फिर देखना बाकी सब तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। पता है वक्त तहज्जुद इसकी इतनी फजीलत क्यों है? क्योंकि वक्त तहज्जुद इंसान में आजिज़ी आ जाती है। सिर्फ अल्लाह होता है और उसका बंदा होता है, और फिर जब वो अल्लाह ताला से मांगता है, चाहे वो उसकी ख्वाहिशात हों, चाहे वो गुनाहों की माफ़ी हो, तो वो बहुत दिल से मांगता है, बहुत उम्मीद से मांगता है। क्योंकि तहज्जुद का वक्त उम्मीद से भरा हुआ वक्त है, मुअज्जिज़ात का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। और इस्तिग़फ़ार को इंसान तब तक नहीं जान सकता जब तक कि इसको बहुत ज़्यादा ना कर ले, जब तक इसमें डूब ना जाए, तो इस्तिग़फ़ार के कमाल को नहीं पहुंच सकता। बस कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो। ये जो मौजज़ों के मुंतज़िर बैठे हो, ये जो दुआओं की कबूलियत में देर हो रही है, शायद कोई गुनाह हो गए हैं या हो रहे हैं कि कबूलियत नहीं आ रही। ये दुनिया जादुई दुनिया नहीं है। इसमें हर चीज़ का एक उसूल रखा गया है, और एक काम जो हमसे किए गए गुनाहों के असरात को ख़त्म कर सकता है, वो है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह जब किसी के नसीब में आती है, तो समझने वालों के मुक़द्दर बदल जाते हैं। इसमें वाक़ई कबूलियत है। बस जो तुम्हें लगता है नहीं हो सकता, वो हो सकता है इसके बाद। जो नहीं हो रहा वो हो जाएगा इसके बाद। जो रुका हुआ है वो चल पड़ेगा। जो आपका है वो आप तक जल्दी आएगा, और जो नहीं है आपका उससे आपको बेनियाज़ कर दिया जाएगा। इतनी ताकत है इस तस्बीह की। अब कुछ नहीं हो सकता।
बस मौजज़ा ही हो सकता है। जब ऐसी कैफियत से मुतारिफ हो जाओ तो समझ जाना कि अब एक काम करना है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है और दिल से करना है, शिद्दत से ज़्यादा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मौजज़े हैं और वो काम है इस्तग़फ़ार। देखो, साल में कई ख़ास रातें हैं जो सिर्फ एक बार आती हैं और दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ास होती हैं, मांगने के लिए ख़ास होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला का करम देखिए कि अल्लाह ताला ने हर रात बंदे को तहज्जुद अता की है। बस ये बंदे का नसीब है कि कौन इसको पाले और किसके नसीब में ये रात ना आ सके। तहज्जुद किस्मत वालों के हिस्से में आती है और जिसके हिस्से में आ जाती है ना, उसके हिस्से में बहुत कुछ आ जाता है। उसके हिस्से में दुनिया की भलाइयाँ आ जाती हैं, उसके हिस्से में आखिरत की भी भलाइयाँ आ जाती हैं। बस जो भी वो मांगता है अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता करता है, या फिर वो अता करता है जो मांगने से भी ज़्यादा बेहतर हो, बेहतर से भी बेहतरीन हो। पता है तहज्जुद की और इस्तग़फ़ार की कितनी बरकतें हैं कि वो तुम्हारी मनपसंद हर शय को तुम्हारी तरफ खींच के ला सकता है। तुम जहाँ कहीं भी मुश्किल में हो, अपने घर में, ससुराल में, दफ्तर में, यूनिवर्सिटी में, सफ़र में, कोई रिज़्क़ की तंगी है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कहीं भी ज़िंदगी में तुम्हें कोई मसला है, वो उन सब को हुक्म दे सकता है कि मेरे बंदे के लिए नरम हो जाओ। उनके जिस्मों को, उनकी ज़ुबानों को तुम्हारा दोस्त बना सकता है। यानी अल्लाह ताला तहज्जुद की बरकत से, इस्तग़फ़ार की बरकत से तुम्हारी रुकावटों को ही तुम्हारा वसीला बना सकता है। तुम्हारी ज़िंदगी की जितनी भी रातें अभी बाकी हैं, वो हर रात तुम्हारे लिए आसमाने दुनिया पर नुज़ुल फरमाएगा। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो तुम्हारे लिए अपनी हर तख्लीक से कह सकता है कि मेरे बंदे के रास्तों को साफ़ करो, मेरे बंदे के लिए आसानियाँ करो। और पता है, अगर तुम कहो कि सालों से मैं तो तहज्जुद पढ़ती हूँ, उसके करीब आती हूँ, लेकिन फिर भी वो कबूल नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, तो तुमने क्या यकीन रखा? तुमने क्या तहज्जुद पढ़ी कि पढ़ने के बाद हिसाब रख लिए, अब होगी कबूल, अब होगी कबूल। मांगने के बाद आज़ाद हो जाया करते हैं। बस फिर आगे काम उस पाक परवरदिगार का होता है। फिर सोचना छोड़ देते हैं, फिर परेशान होना छोड़ देते हैं, और फिर वो ऐसे मौजज़े करता है कि बंदा हैरान रह जाता है। अपने पाक परवरदिगार का ढेरों ढेर शुक्र करो कि अगर वो तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है, उसने तुम्हें इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक बख्शी है, तो ये बड़े ही नसीब की बात है। वरना सारा जग ना आ जाता। यहाँ तो अल्लाह के ख़ास बंदे आते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हर मांगने वाले को जो उससे मांग रहा है, हर उम्मीद रखने वाले को जो उससे उम्मीद लगाए बैठा है, हर मौजज़ों की मुंतज़िर आँख को जो आसमान की तरफ तक रही है बड़ी ही उम्मीद से, अल्लाह पाक अपनी शान करीमी से कुन फ़ाया कुन के जलवे दिखाए, कबूलियत के मनाज़िर दिखाए,
अल्लाह पाक आप सबकी दुआओं को, मेरी दुआओं को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो को आखिर तक देखा है और लाइक नहीं किया तो लाइक भी लाजमी करें। शुक्रिया।